اور دل کی گہرائیوں سے دعا ہے مالک برادر محترم ذاکر اہل بیت شاعر دہلیز بطول بھائی مجاہد حسین کے درجات مزید عرفہ والا و بلند فرمائے۔ مالک ذکر کا تسلسل ان کی اولاد میں جاری رکھے۔ مالک اس گھر پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ مالک باقر کی زبان میں بیان میں مزید تاثیر عطا فرمائے۔ اس خاندان کے جمیع مرحومین کی درجات کی بلندی کے لیے درود سارے مل کے بلند آواز کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا۔ لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وبناهما والسيدا إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء صلوات۔ وہ شجرے کا حق بھی ادا کر رہا ہے، وہ شجرے کا حق بھی ادا کر رہا ہے جو بندہ علی سے وفا کر رہا ہے۔ شجرے کا حق بھی ادا کر رہا ہے جو بندہ علی سے وفا کر رہا ہے۔ نہیں کوئی شیعہ نمازوں کا منکر، یہ حرکت کوئی دوسرا کر رہا ہے۔ نماز امر ہے اور اولی الامر حیدر عبادت سے کس کو جدا کر رہا ہے؟ تھوڑی سی زیادہ توجہ کیجیے گا۔ لگا کے عزاداریوں کے تو فتوے، بھلا سوچ کس کو خفا کر رہا ہے؟ مشروں پہ ہر وہ عزادار واجب سمجھ کے بولے جو بطول کے مجرم میں تبرہ صرف تبرہ نہیں سمجھتا، اپنا دین سمجھتا ہے۔ بھلا سوچ کس کو خفا کر رہا ہے؟ بھلا سوچ کس کو خفا کر رہا ہے؟ بھلا سوچ کس کو خفا کر رہا ہے؟ اور کرے نہ جو زہرا کے دشمن پہ لعنت تو پھر اس پہ لعنت خدا کر رہا ہے۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ کرے نہ جو زہرا کے دشمن پہ لعنت تو پھر اس پہ لعنت خدا کر۔ عزیزان گرامی، ایک بندہ کسی سیاسی جلسے میں بڑا اچھل کے نعرے لگا رہا ہے۔ دوسرے بندے نے اس سے سوال کیا کہ جس کے لیے نعرے لگا رہے ہو، جس کے جلسے میں آئے ہو، کیا اسے جانتے ہو؟ اس نے کہا جانتا ہوں تو نعرے لگا رہا۔ اس نے کہا جلسے والا تمہیں جانتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا میرے 2-4 سوال ہیں۔ اس نے کہا پوچھو۔ مولانا طارق جمیل کو جانتے ہو؟ انہیں کون نہیں جانتا؟ بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، بہت بڑے اسکالر ہیں۔ اس نے کہا یہ بتا تو انہیں جانتا ہے؟ اس نے کہا جانتا ہوں۔ مولانا طارق جمیل تجھے جانتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کرسٹیانو رونالڈو کو جانتے ہو؟ کون نہیں جانتا، بڑا بڑا فٹ بالر ہے۔ کہ کون سے میرا سوال نہیں تجھ سے ہے، تو جانتا ہے؟ اس نے کہا جانتا ہوں۔ کرسٹیانو رونالڈو تجھے جانتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ 2 ہی سوال اس نے کہا میرے بقایا ہے۔ نواز شریف کو جانتے ہو؟ بڑی اچھی طرح جانتا ہوں۔ نواز شریف تمہیں جانتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آخری سوال ہے میرا، عمران خان کو جانتے ہو؟ اس نے کہا بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، ووٹ بھی انہوں ہی دیتا ہے۔ عمران خان تمہیں جانتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یار کتنی عجیب بات ہے جو لوگ
तुम्हें जानते तक नहीं उनकी मोहब्बत में, उनके प्यार में तुम जान तक देने के लिए तैयार हो, और जो तुम्हें कब्र में भी जानेंगे, हश्र में भी जानेंगे। क्या बात है, ये हाथ सलामत रहे, ये हाथ सलामत रहे। मालिक आपका अमर भाई सलामत। जो तुम्हें कब्र में भी जानेंगे, जो तुम्हें हश्र में भी जानेंगे, उनके लिए जुबान तक हिलाना गवारा नहीं करते। मैं चूँकि मजलिस है बराए इशाल सवाब भाई मुजाहिद हुसैन, तो मालिक की बारगाह में उनके लिए हर बंदा दुआ का नजराना पेश कर रहा है। मैं इंतहाई छोटा बड़ा हकीर सा शायर हूँ मौला की बारगाह का, तो जो 4 मिसरे मैंने मालिक की बारगाह में उनके लिए दुआ के हवाले से हदिया किए, मैं चाहता हूँ कि उन्हीं से मैं आगाज़ करता हूँ। आवाज़ आ रही है रुखे मशरकैन से। ये बातें दाद वाली नहीं होती, ये बातें दुआ वाली होती हैं। आप अगर दाद देंगे तो ये मेरे मारिफत है आपका, मालिक उनके दर्जात मजीद बुलंद फरमाए। आवाज़ आ रही है रुखे मशरकैन से, शब्बीर कह रहे हैं यही किबलतैन से, और इस वास्ते रजब में बुलाया गया उसे, शाबान हम सुनेंगे मुजाहिद हुसैन से। ये असरार होते हैं आले मोहम्मद के, असरार होते हैं आले मोहम्मद के। हाथ उठा के जितने बैठे एक दफा हाथ उठा के या अली कहें। आपके क्या कहें, आपके क्या कहें, आपके क्या कहें। मैं जो मौजू पढ़ना चाहता हूँ, मेरा दिल है मैं पहली रुबाई ही उसी मौजू के साथ मुतय्यन करके पढ़ना चाहता हूँ कि गुनाहगार को बाग़े इरम नहीं देते। गाजियाबाद है, मैं तकी पढ़ाना, तकी सुनाना, सबक सुनाना जी। हर मिसरे में एक फैसला है, पहले मिसरे पे बोले न बोले आपकी मर्जी, चौथे मिसरे पे आदिल पीर बोले न बोले आपकी मर्जी, अगर तीसरे मिसरे पर दिल कहे तो मेरा साथ दीजिएगा, और अब तयन हो जाएगा, आप भी समझ लेंगे कि कौन सा मौजू मैं पढ़ना चाहता हूँ। कि गुनाहगार को बाग़े इरम नहीं देते, नहीं देते समझिएगा, गुनाहगार को बाग़े इरम नहीं देते, जो लिख न पाता हो उसको कलम नहीं देते। क्या बात है यार, क्या बात है यार। मैं दाद नहीं मंगी, तुसी दाद दे रहे हो आमिर भाई। गुनाहगार को बाग़े इरम नहीं देते, जो लिखना, भाई अंडरस्टूड बात है ना, जो लिख न पाता हो उसको कलम नहीं देते। और मेरा मौजू एक है, जो लिख पसंद आए तो बोलिएगा, मैं इसी को कंटिन्यू करूंगा। जो लिख न पाता हो उसको कलम नहीं देते। और बता दिया है मोहम्मद ने आप खैबर में, नहीं है मर्द जो उसको अलम नहीं दे। अल्लाह अकबर, के हाथ सलामत रहे, अच्छा के बोलो अली हक अली। क्या कहते हैं, ये रूहानियत है, उनकी मौजूदगी हमारे दर्जात मजीद बुलंद फरमाए। क्या खूबसूरत मयार समात है। चलो एक रुबाई और पढ़ दें। इरादा नहीं सी, मेरे भाई ने याद था कि शायद भाई थोड़ा सा पढ़ना, तो मेरे एतमाद इसमें इजाफा हुआ है, तो मैं चाहे एक रुबाई और पढ़ा। नहीं है मर्द जो उसको अलम, इसी बात की शरह में नसर नहीं करने लगा, 4 मिसरे और पढ़ने लगा हूँ कि कभी भी बेवफाओं को वफादारी नहीं आती। क्या बात है यार। नहीं है मर्द जो उसको अलम नहीं देते, फिर उसकी रीजन क्या है। कभी भी बेवफाओं को वफादारी, चेहरे खेले तो मेरे साथ बोलिएगा, कभी भी बेवफाओं को वफादारी नहीं आती। जो बुज़दिल है उसे मरकर भी सालारी नहीं आती। जो बुज़दिल है, जो बुज़दिल है, जो बुज़दिल है उसे मरकर भी, आप सलामत रहे, जो बुज़दिल है, चौथे मिसरे तक मेरा साथ दे, दिल कहे, ज़मीर कहे, खमीर कहे, बोलना है तब बोलना है। जो बुज़दिल है उसे मरकर भी सालारी नहीं आती। और वो खैबर में अलम को छोड़ के भागा तो याद आया, अलम वाले के मुनकिर को अलमदारी नहीं। आके बोले हर लिखना वो खैबर में अलम को छोड़ के बिस्मिल्लाह मालिक जी। मैं जरूर पढ़ दूंगा। अलम वाले के मुनकिर को अलमदारी नहीं आती। अब मुझे जो हुक्म किया है मेरे भाई ने, वो जरा मेरे मौजू से हटके है, लेकिन उसका हुक्म है और हुक्म की बजाय आमरी वाजिब है। 4 मिसरे मैंने कहे थे, बाकी नसर तो बगैर पढ़ दें।
जेडी ग्राउंड हो तो बगैर पढ़ते हैं। चलो एक दरूद मिल के पढ़ो बुलंद आवाज में। मेरा आमिर भाई चूंकि लिटरेचर सब्जेक्ट है, थोड़ा सा मैं पढ़े तो कोई थोड़ा दिन पढ़ाया भी, और उसमें जो चीजें मजाज के हवाले से मेरी आंखों के सामने हैं, उन मिसरों पे मालिक ने मुझे मिसरे अता फरमाए और मैं बानी याद क्या तुसी नजर कर लो। तो मैं आके चलो मैं गल पेश करना, सारी तरतीब नाल पेश करना। मिर्जा गालिब बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, बच्चा बच्चा उनका नाम जानता है, मुमकिन नहीं किसी को उनके नाम का न पता हो, वाकफियत न हो। उनकी एक गजल का मतलब है बस के हर एक उनके इशारे में निशान और, बिस्मिल्लाह जी, है बस के हर एक उनके इशारे में निशान और समझ आ गया ना जी, तो फिर और गल नहीं करनी पैनी है। बस के हर एक उनके इशारे में निशान करते हैं मोहब्बत तो गुजरता है गुमा, ये और समझने आदत की, करते हैं मोहब्बत तो गुजरता है गुमा। इसी काफिर हदीस में, इसी बंदिश में अल्लामा इकबाल ने भी एक नज़्म कही, उस नज़्म का मशहूर ज़माना शेर है, इसमें एक लफ्ज़ आ रहा है तफावुत, डिफरेंस, फर्क। और मैं नहीं लगता कोई अल्लामा साहब तो मिशरात है ना, ते दिमाग इसको लानत और तबर्रे का माहौल चल रहे हैं। गालिब का मिसरा है करते हैं मोहब्बत तो गुजरता है गुमा, और इकबाल ने कहा अल्फाजो मुआनी में, एक गाजिया बात है, और कोई गल है तो साका नशर करो ना, मैं शेर पढ़ने लगा, उन्होंने क्या अल्फाजो मुआनी में तफावत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ा और मुजाहिद की अज़ा। जियो क्या बात है, तुम्हारी क्या बात है यार, आपकी क्या बात है, कोई फर्क नहीं, पढ़ने में फर्क नहीं, अदायगी में फर्क नहीं, सारे बोलो, सारे बोलो। अल्फाज और महानी में तफावत नहीं, लेकिन मुल्ला की अदा और आप चुके काफी हदीस बड़ा खूबसूरत है। गालिब की जमीन में इकबाल ने नज़्म कह दी, और मैं यार इन्होंने बुजुर्ग बहुत बड़े ने, इन्हों दी जुतियां भी साढ़े तो भारी ने, गालिब भी सिया, इकबाल भी उदार अहले बैत, हुण कौन उन्हां वर्गा लिखे, लेकिन खैरात बंदा मांगता है। मखदूमा कौनैन, मखदूमा शाह, मैंने कहा मुझे भी अता फरमाए, तो जो 4 मिसरे मुझे अता हुए उन्हीं 4 मिसरों का वाक़या ने हुक्म किया। और कोई मुनफरिद अता है शाम की मलिका की, मैं पढ़ूंगा, आपका बोलना बताएगा, आपके खेले हुए चेहरे बताएंगे, बात आपको कितनी खूबसूरत लगी या बात कितनी मुनफरिद थी। गालिब ने कहा करते हैं मोहब्बत तो गुजरता है गुमा, और इकबाल ने कहा मुल्ला की अज़ा और मुजाहिद की अज़ा, मुल्ला की अज़ा और मुजाहिद की अज़ा। अब जो खैरात साहिल रज़ा ने मांगी, पहला मिसरा पहुंचा तो और का लुत्फ आएगा, खुद खल्क किया इसने वफाओं का जहां, और नहीं मेरी मेहनत ज़ाया ना हो, मेरी मेहनत ज़ाया ना हो। आदिल पीर वेख रही है, हैदर मालिक सलामत रखे, आमिर भाई, खुद खल्क बिलाल, खुद खल्क किया इसने वफाओं का जहां, और चौथे मिसरे ते दाद होंदी है, ऐंज दे बंदे लब्बन ते दिल करदा है मिसरे मिसरे ते दाद मिले। खुद खल्क किया इसने वफाओं का जहां, और रुतबे में यहाँ और है, मनसब में वहां और, रुतबे में यहाँ और है, रुतबे में यहाँ और है। मालिक इससे ज्यादा इज्जत अता फरमाए, मालिक मजीद तासीर अता फरमाए, मालिक भाई मुजाहिद हुसैन के दर्जात मजीद बुलंद फरमाए, जिस ख्याल के लिए मुझे हर मेंबर से, अगर मेरे बाद मेरा भाई मौजूद हो तो मुझे कहता है, हुक्मन कहता है, प्यार से भी कहता है, लाड से भी कहता है कि साहिल भाई ये मिसरा जरूर पढ़िए। वो मिसरा पढ़ने लगा हूँ जिसके लिए बाकर मुझे हुक्म कर रहा था कि खुद खल्क किया, गल चंगी लगे, गल नमी लगे तो एज बोलो कि दरो दीवार भी अली अली करन। खुद खल्क किया इसने वफाओं का जहां, और रुतबे में यहाँ और है, मनसब में वहां और दो ऐसे हुए एक कि लगता ही नहीं है, शब्बीर की माँ और है अब्बास की माँ। खुद खल्क किया इसने वफाओं का जहां, और रुतबे में यहाँ और है, मनसब में वहां, और दो ऐसे हुए
دو ایسے ہوئے ایک کہ لگتا ہی نہیں ہے شبیر کی ماں اور ہے اللہ اکبر عباس کی ماں مالک آپ کو سلام تو میں بسم اللہ جی مالک عزت میں بلے کو اضافہ فرمائے میں جو موضوع لے کے آ رہا تھا میں جو موضوع پڑھنا چاہ رہا تھا اس موضوع کو کنٹینیو کرنے کے لیے میں وہیں سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں. اگر آپ کے ذہن میں ہے علم والے کے منکر کو علمداری علم والے کے منکر کو علمداری علم والے کے منکر کو علمداری کوئی نسل نہیں کرتی کوئی گراؤنڈ نہیں. بہار الانوار کی روایت ہے کہ سرکار رسالت نواب کے سر میں درد تھا. اے گل دین چل کو ایتھے میں گل شروع کرنے لگا اتنی پریشانی 39 روز گزر گئے 40واں دن سر پہ تھا سر میں درد تھا. یہیں سے میں آغاز کر رہا ہوں کہ تاریخ کہہ رہی ہے کہ سر میں بھی درد تھا. 3 مصرے ڈپکشن ہے منظر نگاری ہے. چوتھے مصرے میں بیان نتیجہ ہے. تاریخ کہہ رہی ہے منظر نظر آئے تو بولیے گا کہ سر میں بھی درد تھا سہمی ہوئی تھی فوج کا چہرہ بھی زرد تھا. ہاں میرا ساتھ دیں گے تو لطف آئے گا. تاریخ کہہ رہی ہے باقر جی چوتھا مصرا نہیں ہے کوئی برباد ہے جی میں تاری توجہ ہے سارے دی. تاریخ کہہ رہی ہے کہ سر میں بھی درد تھا سہمی ہوئی تھی فوج کا چہرہ بھی زرد تھا. بہتا تھا جو رگوں میں لہو بھی وہ سرد تھا. بہتا تھا جو رگوں میں بجاؤ دیے کئی بجاؤ دیے کئی بجاؤ دیے کئی تین گلن ریجن کئی. بہتا تھا جو رگوں میں لہو بھی وہ سرد تھا. وجہ کی گئی جو جنگ جیتتا تھا مدینے میں مرد تھا. ہاتھ اٹھا کے بولو حیدری